हाय गाइस। इस सेशन में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे डाल दिया मैंने? उफ। यस। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane has some more names. It is also known as plasma lemma or plasma membrane, often written as PM. ठीक है, the term plasma lemma was actually coined by Ploe. Who coined it? Ploe. Ploe was the one who coined the term plasma lemma. ठीक है, very often it is called plasma lemma also. So that was coined by Poe. 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 Ploe. Sorry, not Poe. Ploe. Ploe was a biologist. Janet Ploe, I guess. It was a woman. Okay. Oh, she's still alive? She's 117 years old. Oh my god. Oh my god. Oldest people in the world. Oldest people alive today. I think she will make the list, bro. I'm pretty sure she made the list. Where is Janet Chloe? Wait, Chloe has to be on the list. Is she there still? Wait, I am pretty excited about this scientist. I mean, oh, is she alive? It's 2022, so she must be 117 years old. Is she there? Janet Chloe. Where is Janet? Janet Chloe. Okay, Janet Chloe is definitely alive. Like, oh, she died. She died on October 28, 2018. Google didn't update it, I mean. She discovered the cell membrane and determined it was a physical thing. She's 113 years old, so her date of death goes just today. Oh, so Janet Chloe died. Okay. Okay. She died. Her death is unknown, and I think that is why people don't believe. Okay, Janet Chloe. I helped develop the cell theory. I proved that the cell membrane is more than just an exchange of liquid between cells. Okay, why does she have just one follower if she's so famous? Okay, I'm literally looking into the life of Chloe, the person who coined the term plasma lemma. Things have really amped up
since my time. Oh, this is 2012. Okay, so she talked about cilia. Good thing I proved cell membranes are more than just an exchange of liquid between cells. Too busy, I didn't know what I would do without biology. Love with my cells. Oh my god. I want to follow this woman right now. Okay, the person Chloe, the term plasma lemma was coined by Chloe, and she's on my textbook, and she seems pretty proud of what she did, and she lived up to 113 years. So, well, she died 13 years after. So 2018 she died. Right. So she made this Twitter account 6 years before she died. Janet Ploe. Arbitrary results. Okay. So I told you a lot about Janet Chloe though. So she was the one who discovered plasma lemma, and she lived up to 113 years, and she was on Twitter where she said bio for life, addicted, good thing I discovered. You know her tweet, I will write down. Her tweet is actually pretty interesting. She says, good thing I discovered the plasma lemma. Oh my god. She has a Twitter account. I mean, she died and she had 4 tweets as well. I'm gonna attach the screenshot right here. I mean, this is her Twitter account and it's quite a thing to look at. Okay, interesting. Chloe on Twitter. On Twitter. Okay, so Janet Chloe did this. Alright? Now, after Janet Chloe, we have got what? After Janet Chloe, we also got the term cell membrane was coined by Nageli and Kramer. So we found something very interesting about the person that coined the word plasma lemma, Janet Chloe. We also looked into her arbitrary, and her date of death is quite unknown today. And about the plasma membrane, okay, the term cell membrane, okay, this term, the cell membrane, was coined by whom? Nageli and Kramer. Okay, Nageli and Kramer coined the term cell membrane in the year 1855, the same year Rudolf Virchow gave Omnicella Cella. Okay, so Nageli and Kramer, we can probably search something with them. Nageli and Kramer, you know, the term cell membrane was coined by them. Anyway, so this was about Nageli and Kramer and about Chloe. These are the namers, okay? So even if you name something, you get famous in the world of biology. That is the art of biology. You become famous even if you merely name something. Okay? Now, chemical studies on human RBC enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. Now, how did before electron microscopes were discovered, chemical structures were done on human RBC, and that sort of helped scientists a lot. The possible structure of plasma membrane was determined by that. Now, the detailed structure of cell membrane
was studied only after the advent of electron microscopes. Cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Mainly lipids and proteins, but there are other things too. Mainly composed of lipids and proteins, but lipids and proteins aren't the only things. There are more than just lipids and proteins in the cell membrane. Okay. Now, the cell membrane is thin, elastic, and selectively or differentially permeable. Okay, it is thin. Okay, cell membrane is thin. Being thin automatically makes it elastic, and it is selectively permeable. Selectively or differentially. Selectively or differentially permeable. Okay, selectively matlab only selective substances are allowed to pass through. There was actually a major difference between selectively, semi, and other things. Okay, it is found between protoplasm and cell wall. Okay, कहाँ मिलती है? प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में स्क्विश रहती है. प्रोटोप्लाज्म है ये तुम्हारी थिक सी सेल वॉल है, इसके बीच में एक थिन सी जो इलास्टिक सी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, है ना. इसके बाद क्या बताया है कि इट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इन अ प्लाज्मोलाइज सेल. ना व्हाट इज, कहाँ कैसे दिखती है? जैसे वैसे तो क्या होता है कि ये सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है ना, ये ही ज़्यादातर एरिया खा जाती है. जो सेल वॉल है वो कवर करके रखती है, और सेल वॉल के अंदर छोटी सी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि दिखने में भी इतनी परेशानी हो जाती है कि दिखती भी नहीं है सही से. ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें अगर सेल मेम्ब्रेन देखनी है तो इसमें अब इस सेल में सेल मेम्ब्रेन समझ नहीं आएगा. बट यही कई सेल जो है अगर ये प्लाज्मोलाइज्ड होता तो ये सेल जो है ये श्रिंक हो जाता. It would shrink away from the cell wall. So in that case you can see the cell membrane clearly. So this is a plasmolized cell. ठीक है. The thickness of the cell membrane is 75 angstrom, only that much. बस इतनी सी thickness है इसकी. ठीक है. It is made up of proteins, phospholipids and carbohydrates. किसकी बनी है? Proteins और lipids तो mainly, but हम हमेशा बोलते हैं proteins तो proteins ही बोलते हैं, but lipids नहीं बोलते, phospholipids बोलते हैं. phospholipids की बनी होती है, और phospholipids के अलावा क्या आता है? phospholipids के अलावा carbohydrates भी आ ही जाते हैं. ठीक है. फॉस्फोलिपिड्स क्यों बोलते हैं? इट इज़ अनदर स्टोरी. ठीक है. द लिपिड कंटेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. द लिपिड कंटेंट ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स. लिपिड एक्चुअली फॉस्फो होते हैं और लिपिड्स होते हैं, तो जो लिपिड कंटेंट होता है ये मेनली क्या होता है? फॉस्फोग्लिसराइड्स. दिस इज मेनली द lipid content of the cell. So phospholipids की बनी होती है, lipid content is mainly phosphoglycerides. Okay. Now in human erythrocytes the composition is, human RBC में क्या composition है? ठीक है, जो RBC ह्यूमन्स के RBC रेड ब्लड सेल की हम बात कर रहे हैं, तो जो प्रोटीन है वो यहाँ पे 52% है. जो प्रोटीन कंटेंट है वो सेल में 52 होता है, बिकॉज तुम्हें पता है कि जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो लिपिड है, जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो सिर्फ ब्लड को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा और मेम्ब्रेन को इम्पर्वियस बनाएगा, वो मेम्ब्रेन में अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा. तो जो ब्लड है उसमें कार्ब्स, लिपिड्स तो सिर्फ 40% ही हैं. जो लिपिड्स हैं, जो तुम्हारे लिपिड्स हैं वो कितने हैं? लिपिड्स जो है बस 40% है, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इज 2 to 5%. ठीक है.
कार्बोहाइड्रेट्स जो है 2 to 5%, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, लिपिड्स जो है सिर्फ 40% और प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द फॉस्फोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीपैथिक, मतलब द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। एम्फीपैथिक मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड है उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है, उसका एक हाइड्रोफोबिक फिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है। तो जो फॉस्फोलिपिड इसका जो हेड है वो तो हाइड्रोफिलिक है, जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का वो तो पानी से प्यार करता है, डरता नहीं है, और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब वो पानी से डरता है। तो इस तरीके के उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट्स होते हैं। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हाइड्रोफिलिक हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो सेल है ना उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो है पानी हो सकता है, और जो अंदर है सेल का उसमें भी पानी हो सकता है। तो इनका अरेंजमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आई विल शो यू राइट नाउ। जो अंदर का पार्ट है वहाँ पानी हो सकता है और जो बाहर का पार्ट है वहाँ पे भी पानी हो सकता है। तो जो हेड है वो बाहर रहता है, टेल अंदर रहती है, और जो सेल के अंदर है वो भी हेड रहता है, टेल अंदर रहती है। इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं कि जो इनर साइड है, इनर पार्ट में जो है हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, उनको अंदर रखते हैं घुसा के, बिकॉज उन्हें पानी से नफरत है। और जो हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि पानी से प्यार करता है, वो बाहर सेल के अंदर और सेल के बाहर आउटर साइड्स में वो होते हैं, ठीक है। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons, जो ये टेल होती है ये नॉन पोलार होती है, पानी से हेट करते हैं, जो भी पानी से हेट करते हैं वो नॉन पोलार होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर और अंदर जो है बिल्कुल पानी ही पानी है। जो हेड्स हैं वो पानी में इमर्स्ड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो हेड्स होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है पानी में इमर्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ सारा पानी ही पानी है, पानी फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पानी फेस करना पड़ेगा, और जो अंदर है बिल्कुल एक्वस एनवायरनमेंट है ही नहीं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर ओलाइगोसैकेराइड्स, ठीक है। सैकेराइड मतलब शुगर, तो ओलाइगोसैकेराइड्स। फिर जो सेल मेम्ब्रेन में ना थोड़े ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी ऊपर से अटैच्ड रहते हैं, इनके हेड पे यहाँ पे कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा से अटैच हो गए। तो ये क्या है, ये है ओलाइगोसैकेराइड, ठीक है। ओलाइगोसैकेराइड्स विच आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, दे कुड बी ब्रांच्ड लाइक दिस और दे कुड बी अनब्रांच्ड लाइक दिस, कैसे भी हो सकता है। इन एनिमल सेल्स सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। जो एनिमल सेल्स है, तभी तो हम सब कोलेस्ट्रॉल के इतने डरे रहते हैं, इसलिए मैं रेड से बनाती हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करती है, इसी से तो वो इम्पर्वियस बनती है, वरना तो अभी ये जो सेटअप है ये सब कुछ को पास करने देगा, पर जो कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा थोड़ा है ना, वो जो है इसको इम्पर्वियस बनाएगा कि ये सब कुछ को ना पास करने देता, डिसेंट ना बने, जो गंदे मटेरियल से उन्हें ना आने दे। तो हल्की सी इम्पर्वियसनेस के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है एनिमल सेल्स में। कभी भी प्लांट्स में हमें ये टेंशन नहीं होती कि मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा इनमें, ये टेंशन हमें प्लांट्स में नहीं होती है, ठीक है। दैट रेगुलेट्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि पूरी पानी ना बन जाए, है ना, थोड़ा बहुत जो है पानी बनी रहे, थोड़ा बहुत सॉलिड भी रहे। तो फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, पर कुछ ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल आ जाए इस तरीके से तो वो तो उसको इम्पर्वियस कर देगा पूरा, मतलब फ्लूइडिटी उसकी बिल्कुल हटा देगा, है ना। क्या कहते हैं, हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, है ना। जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाता मतलब क्या अफेक्ट हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक में भी क्या अफेक्ट होती है, उसकी फ्लूइडिटी अफेक्ट होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी डिपॉजिट से जो है ब्लड की फ्लूइडिटी ही अफेक्ट होती है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल तो ठीक रहता है, पर अगर तुमने पूरा ऐसे कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट कर दिया तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी चेक करता है सेल की, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है तो सही रहता है,
ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. पहले टाइप के प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल, जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके से उनकी शेप में रखते हैं, इस तरीके से उसके आसपास रहते हैं. इनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं. दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके से अच्छे से बैकबोन फॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन की. फिर कैरियर प्रोटीन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे जो है, ये यहाँ से अगर पानी को फ्लो करना है, ये टेल तो फ्लो करने नहीं देगी, तो यहाँ पे अगर पानी को फ्लो करना है ना, टेल्स तो फ्लो करने नहीं देगी, तो अगर पानी को फ्लो करना है तो यहाँ पे एक आपको बैरियर, एक आपको एक अच्छा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा. उस ब्रिज से ही पानी जो है फ्लो कर सकता है. अगर पानी को फ्लो करना है तो इट कैन ओनली फ्लो विद दैट ब्रिज. If it wants to flow, it can only flow by that bridge. तो ये होते हैं कैरियर प्रोटीन्स. एंड देन कैटालिटिक प्रोटीन्स आर एंजाइम्स. बेसिकली और भी थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स. ये बेसिकली एंजाइम्स होती हैं, तो इधर उधर ये ऐसे रहती है मेम्ब्रेन में अंदर. यहाँ पे इतनी खाली स्पेस है तो यहाँ पे ये एंजाइम्स. तो ऐसे 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, कैटालिटिक प्रोटीन्स नॉन पोलर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी. क्योंकि बीच जो मेम्ब्रेन का बीच वाला पार्ट है ना, जो मेम्ब्रेन का जो बीच वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक है. तो यहाँ पे अगर पानी को एंट्री देनी है तो तुमको हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर सब्सटेंस को एंट्री देनी है, तो उन्हें नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स की मदद से ही आप पास करवा सकते हो. ठीक है, फिर structure of the cell membrane, various models of cell membrane were proposed by different scientists. अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए, अलग अलग स्पेकुलेशंस की. ठीक है, सबसे पहले आया ट्राइमेलार ट्रिलामेलार ट्रिलामेलार बोल सकते हो, और यू कैन कॉल इट ऑल्सो द सैंडविच मॉडल. इसको कुछ लोग सैंडविच मॉडल बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिलामेलार बोलते हैं. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. सीधी सादी नौकर जमा. Okay, so we have trimelar or sandwich model, which was proposed by Danieli and Davison. Danieli and Davison, sorry, not Davison. Danieli and Davison proposed the trimelar or the sandwich model in the year 1935. ठीक है, they proposed the trimelar or the sandwich model. It consists of a biomolecular layer of lipids which lie between 2 layers of proteins. ठीक है, जो lipids हैं, क्या होता है सैंडविच मॉडल में कि एक बायोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स, मतलब 2 लेयर ऑफ लिपिड्स है. ये 2 लेयर ऑफ लिपिड्स को मैं येलो दिखाती हूँ कि येलो फैटी सब्सटेंस होती है ना. तो ये 2 लेयर ऑफ लिपिड्स हैं. ठीक है, ऑफ लिपिड्स विच लाई बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स को मैं ग्रीन से दिखाती हूँ. तो इस 2 लेयर ऑफ प्रोटीन है, उनके बीच में 2 लेयर ऑफ लिपिड. ओफ, आई मेड इट टू ब्राइट. 2 लेयर ऑफ प्रोटीन्स, 2 layers of lipids lie between 2 layers of proteins. ठीक है, तो the polar hydrophilic heads of 2 layers of proteins. ठीक है, अब इसको मैं रब करके, जैसे इन्होंने भी हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल वाला मॉडल प्रपोज किया था. तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक हाइड्रोफोबिक
The polar hydrophilic heads of each phospholipid are towards the surface and non-polar, ठीक है, तो जो हेड है वो तो इस तरफ है बाहर, और जो टेल है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। हेड इसकी तरफ है, टेल अंदर की तरफ है, हेड इसकी तरफ है, टेल अंदर की तरफ, हेड इसकी तरफ, टेल अंदर की तरफ। जो टेल्स हैं वो सेंटर में प्रोटेक्टेड रहती हैं और हेड जो है बाहर की तरफ रहता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द polar hydrophilic heads of each phospholipid layer are towards the surface and tails, ठीक है, ठीक है। The phospholipid layer is sandwiched between the two protein layers. You can see that these two protein layers are kind of sandwiching the phospholipid layer. तो ये जो लेयर है ये सैंडविच्ड है, ये बीच में अगर कोई बंदा बैठा होता है तो हम क्या बोलते हैं, यू आर सैंडविच बिटवीन दोज टू। तो एक तरीके से सैंडविच्ड है लेयर्स ना, प्रोटीन्स के बीच में ये बिल्कुल सैंडविच्ड हैं ये दोनों लेयर्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, according to this model it is solid in nature and it cannot explain the selectively permeable nature of cell membrane. अब हमें ये नहीं पता कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अगर प्रोटीन के अंदर से पास होना चाहती है तो वो कैसे पास होगी, क्योंकि प्रोटीन्स में से पास होने के लिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमेशा तो एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो कैसे मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस नहीं आ पाती, कुछ जा पाती हैं, कुछ को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों है मेम्ब्रेन के साथ। और जो है इसकी फ्लूइडिटी भी नहीं बता सकती, सॉलिड, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोटीन्स इस तरीके से हैं मतलब कि बिल्कुल सॉलिड रिजिड मेम्ब्रेन है, प्रोटीन्स बिल्कुल भी किसी चीज़ को हिलने नहीं देंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल। इट वाज ट्राइलैमेलार और सैंडविच मॉडल। यू कैन नोटिस कि ट्राई मतलब 3, लैमेलार मतलब कि लैमेला, तो एक तरीके से सैंडविच मॉडल, ठीक है। इसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ये एक नया कॉन्सेप्ट था, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, आया यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ये तो फेल हो गया क्योंकि ये सैंडविच मॉडल बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया फ्लूइडिटी और सेमी परमिएबिलिटी, है ना। तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन 100 years later. In 1957, Robertson proposed the unit membrane concept. He found that all biological membranes are made of lipid layers sandwiched by 2 protein layers. Lipid layer sandwiched by, तो यही मॉडल इसमें क्या हुआ कि यही सेम मॉडल, अब इसमें रॉबर्टसन ने क्या बताया कि इट इज़ सिमिलर टू द ट्राइलैमेलार मॉडल। यही सेम मॉडल रॉबर्टसन का भी था पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। द मॉडल कुड नॉट ओके, द यूनिट मेम्ब्रेन हैज़ अ थिकनेस ऑफ 75 एंगस्ट्रॉम। तो उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बता दी इस मॉडल में कि 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है। यही सब उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया अपने खुद के शब्दों में और थिकनेस बता दी 75 एंगस्ट्रॉम, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था, है ना। अब दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डायनामिक एंड फंक्शनल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे फंक्शन करती है, कैसे मूव करती है, क्यों सेमी परमिएबल, ये सब नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एंड वैलिड बिकॉज दिस वॉज इनवैलिड बिकॉज डिफरेंट बायोमेम्ब्रेन्स डिफर इन देयर फॉर्म, कंपोजिशन एंड थिकनेस। अलग मेम्ब्रेन्स अलग टाइप की थिकनेस रखती है और अलग मेम्ब्रेन्स की फॉर्म और कंपोजिशन भी बहुत अलग होती है। हर जगह आपने पढ़ा होगा कि ये जो कॉम्पोजिशन हमने बताई 52% कहाँ है वो 52% जो हमने बताया कि 52% प्रोटीन है, लिपिड है, 40% कार्बोहाइड्रेट्स है, ये किसके लिए हमने डिफाइन किया है, ह्यूमन आरबीसी के लिए। आरबीसी भी और रेड ब्लड सेल भी ह्यूमन के आरबीसी के लिए, अलग फॉर्म्स के लिए अलग टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन रहेगी, अलग थिकनेस रहेगी और फॉर्म भी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो ये मॉडल काफ़ी हद तक फेलियर था, एकदम फेलियर था, बिकॉज इसमें हमें कंपोजिशन बता दी गई थी जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब हम सही मॉडल को नेक्स्ट वीडियो